Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has taken spirituality to the farthest corners of the world. His meditation and breathing techniques have deeply touched and transformed the lives of over 450 million people in 156 countries by helping them find freedom from stress and negativity. He inspires the highest human values of love, compassion, and togetherness by uniting people from all cultures in a spirit of service and belongingness. He has shown us again and again that the whole world is indeed one family. Varda Khan Nadiadwala made her debut as a producer with the blockbuster movie Houseful 4. She believes in the power of yoga as the basis of a healthy lifestyle and is also a strong proponent of self-defense training for women. She not only practices it, but also inspires women to do so through her online series of self-defense videos. Presenting Varda Khan Nadiadwala in a heart-to-heart with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Guruji, Hello. namaskaram. Hey, Yes, Gidira. Varda, how are you? I am very good, Guruji. Just a bundle of nerves because I'm going to be talking to you. आपको तो पता भी नहीं होगा मेरी तो कॉन्वर्सेशन अब से 2 दिन से चालू है इन माय माइंड अच्छा आई वाज सो एक्साइटेड मैं तो रात भर सोई भी नहीं हूँ गुरुजी यू नो बिकॉज मुझे इसलिए एक्साइटमेंट हो रही थी गुरुजी आपसे मिलने के लिए बिकॉज very rarely you see someone who is globally loved and respected by everyone. And हमारे देश में तो yes, but globally आपको बुलाया जाता है to mediate, to मसलों का हल करने के लिए, peace talks करने के लिए, Western countries, Middle Eastern countries आपको बुलाती है for peace conferences. आपको ambassador of peace कहा जाता है. आपको आबू धाबी के प्रिंस ने मास्टर ऑफ लव का आप 800 स्कूल्स चलाते हो 80,000 बच्चे आपके अंडर पढ़ रहे हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट थिंकर्स बना रहे हैं फ्री मील हो रहा है गुरुजी ये इतनी लंबी लिस्ट है आपकी गुड डीड्स की ओ माय गॉड इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड सब अपने आप होता है सब लोगों में इतना प्यार है ना आप थोड़ा प्यार देते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है यही होता है दुनिया में गुरुजी इतना प्यार आपके दिल में कैसे है और सभी के लिए यूनिवर्सली so much love I never felt I am a foreigner to in any land or to any place so I always feel one with them one with the place everyone I meet I feel I know them and they are part of me so मुझे कभी भी परायापन लगता ही नहीं है I never felt that someone is other or different from me perhaps it resonates in other people's mind and heart also they also feel that way गुरुजी मैं हमेशा से मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ I love to believe I'm an optimistic happy girl and I always make these funny videos for my social media मुझे बहुत मजा आता है हंसने हंसाने और खुद पे हंसवाने भी बट गुरुजी अभी जो हालात चल रहे हैं तो मैं तो कंटिन्यू कर रही थी बट इस हालात में भी ऐसे वीडियोस बनाने क्या मैं थोड़ी हटेली हूँ कि am I being wrong? ये अभी Am I being- ज़्यादा ज़रूर नहीं नहीं am I being- वर्दा अभी ये ज़्यादा ज़रूरत है इन्हीं दिनों में इसकी और आवश्यकता है क्योंकि घर में लोग बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं या हमेशा कोरोना लेकर के अपना दिमाग को खरोच रहे हैं इस वक्त अच्छा है कुछ फनी वीडियोस आए तो उनको कुछ गुदगुदी होए वो हंसने लगे बहुत अच्छा काम करो ऐसे करो अभी ज़रूरत है जीवन में हर मौके पर हंसो और हंसाओ यही मैं कहता हूँ मत फंसो मत फंसाओ हंसो और हंसाओ oh god that's such a beautiful life हंसो और हंसाओ मत फंसो और मत फंसाओ that's beautiful गुरुजी तो हमने इतनी उन्नति की हम चांद पे पहुंच गए हम मार्स पे पहुंच गए हमारी रॉकेट्स जाते हमारे सैटेलाइट जाते ये
टू सा वायरस गुरुजी, जो हाथ धो के साबुन से 20 सेकंड में धुल सकता है, उसने हमको घुटनों पे कैसे ला दिया? दिस इज द मिस्ट्री ऑफ नेचर. ऐसा ही है प्रकृति में. Yeah, that a virus can humble you. ओह या गुरुजी, फूड तो हमको फिजिकली इम्पैक्ट करता ही है. Does food really affect us mentally, spiritually also? Yeah, definitely. Food has a big impact on our behavior, हमारा thinking. You know, इंडिया में it's a very common thing. जब कोई अजीब सा व्यवहार करता, बिहेव करता है, तो बोलते हैं क्या खाया तुमने आज. वो है, फूड का इम्पैक्ट तो है अपने मन पर. इसलिए बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए. अपना बॉडी को सुनना चाहिए. हमारी बॉडी को कौन सी फूड सूट करता है वही खाना चाहिए. मैंने सुना है कि आप बचपन में बहुत नटखट थे, तो आपकी और मेरा बचपन खत्म नहीं हुआ अभी. गुरुजी, I love you. I also always say that 18 till I die. तो आपको किसी ने कहा था कि आप बड़े होके इतने महान व्यक्ति बनोगे, इतनी पूरी दुनिया के दिलों पे राज करोगे, लाइक दिस थिंग, और आपने क्या इल्म किया कि आप जिधर आज हैं आप वहां हो? ना मैं तो वही हूँ जहाँ मैं पहले था. मैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया हूँ. बाकी जो हो रहा है वो सब. जैसे आप देखो ना, आप एक मूवी प्रोड्यूस करते हो, मूवी प्रोडक्शन हो जाता है, सब देख जाते, लोग देख लेते हैं, फिर वो समाप्त हो जाता है, फिर नया शुरू करते हो ना. मगर तुम तो जैसे हो, जहाँ हो वहीं पर रहते हो ना. Yeah, I'm trying to get what you are saying. या गुरुजी, मुझसे भी जब कई बार लोग पूछते हैं आपकी एज क्या है, मुझे से लगता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है. It is what I am. Please tell me a little bit about your journey, Guruji, because experience is always free from others' life, and I admire you so much. जब हम छोटे थे, हम बड़े लोगों के साथ थे. अब हम जैसे बड़े हो रहे हैं, हम सब यंगस्टर्स के साथ हैं. I used to spend my time with all elderly people when I was young. Now that I am spending time with lot of youngsters, I would recommend every aged person to spend time not just with their own age group, but spend time with young people. When you spend time with young people, as you get older, your spirit will also become very lively, and you don't sit and think, oh, I am so aged now. ये भाव आता ही नहीं है. You become one with your company, right? गुरुजी, एक चीज मुझे हमेशा लगती है, जैसे एक इंसान की नीड, जरूरत दूसरे इंसान का ग्रीड है, और किसी का ग्रीड एक अगले की नीड होती है. गुरुजी, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन नीड एंड ग्रीड? गुरुजी, नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना ही नीड सोचना चाहिए. अपना क्या नीड है ये देखें, और नीड से ज़्यादा होता हो तो ग्रीड है. अब दूसरा कोई व्यक्ति सोचे इनका ग्रीड, वो नहीं बनेगी बात. अपना नीड और अपना ही ग्रीड भी अपना ही होता है. देखिए, हम शहर में रहने वाले, हमारा नीड होता है गाड़ी रखना, बट दैट पीपल इन द विलेज कैन नॉट थिंक दैट इनका ग्रीड है ये गाड़ी रखे हैं. वो उनका भूल है. हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरत है. अब मुंबई में रहते तो एयर कंडीशन इज़ ए नीड, बेसिक नीड हो गया. मगर पुणे में आओ या कोई ऐसी गांव में जहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए वो नीड नहीं है. तो हर एरिया में किसी को और हर अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से नीड होता है. नीड से ग्रीड कैसे होता? ग्रीड माने हमें और चाहिए. दिमाग कहता है कि मुझे लेटेस्ट मॉडल चाहिए, एक गाड़ी इस साल, अच्छा अगले का गाड़ी ले लेंगे, ये कर लेंगे, रोल्स रॉयस चाहिए, वो ग्रीड हो जाता है. एक रोल्स रॉयस हो तो नहीं काफ़ी, अरे 2 लोग ले लेंगे. दूसरों के साथ कंपेयर करके हम कुछ खरीदते हैं, वो ग्रीड होता है. You listen to your heart and that is your need. But you look to your neighbor or you look to somebody else and then you want to compete with them, that is greed.
That is great. That is so beautifully and सिंप्लीफाई कर दिया आपने मेरे लिए गुरुजी। तो मेरे भी दो बेटे हैं। मेरे पहले बेटे ने मुझे मम्मी बनाए और मुझे मेरे दूसरे बेटे ने मुझे रेफरी बना दिए गुरुजी। रोज मैं इनके लफड़े सलटाती रहती हूँ। एक बोलता है मम्मा आपने उसकी साइड लिया, मम्मा आप हमेशा उसकी साइड लेते हो, आई एम ऑलवेज राइट। तो गुरुजी एज अ मदर मैं इनके लफड़ों में कैसे क्या क्या करूं, बिकॉज समटाइम्स आई बिकम इनसीन, मैं अपने बाल नोचने लग जाती हूँ गुरुजी। बिकॉज मैं अगर तुम सही हो तुम गलत हो, तुम ऐसे मत करो तुम ऐसे मत करो, एक दिल दुखा के बैठ जाएगा, दूसरे को लगता है कि मम्मा हमेशा पार्शियल रहती है, बट आई एम ट्राइंग टू बी न्यूट्रल। नहीं देखो वारधा, मम्मी कभी पार्शियल होती ही नहीं है. मदर विल नेवर बिकम पार्शियल. Mother's love for both children is always equal. It is the perception, sometimes children perceive differently, but they will understand that also. Main thing is we should not wish that children won't fight at all. As kids, they should fight. They'll fight, they'll get along, they love each other. It is just part of life, and that makes life even more colorful. You know? So, kids fight, and as elders we should not interfere too much into them. We should not give them too much suggestions, don't do this, don't do this, don't do that. We should simply divert their attention. Instead of giving them a negative suggestion, give them a positive suggestion. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कोई बच्चा बॉल फेंकता है, वो जाके किसी कांच पे गिरने की संभावना है, yeah. तब हम ये कहते ए मत फेंको के जगह सुनो उस तरफ फेंको या उसको ले जाके वहाँ रखो. ये पॉजिटिव सजेशन हुआ. इंस्टेड ऑफ टेलिंग ए कहीं तुम कांच तोड़ दोगे वहाँ मत फेंको, इस तरह का हम नेगेटिव सजेशन कम करें देना. It is impossible not to give negative suggestion, but if we can reduce them, उसको जितना कम कर सकें हम conscious हो जाते हैं, then we will be able to give them a positive direction to life. अब ये तो होता ही है, बच्चे लड़ते ही हैं सब अपने आपस में, फिर एक भी हो जाते हैं, साथ में भी रहते हैं. So yeah, एक्चुअली मैं दुश्मन बन जाती हूँ गुरुजी. नहीं वो सब it's just part of the play, so you don't take it too seriously. And Guruji, my little younger one, my older one is very सुलझा हुआ. He is a very mature person. बचपन से ही काफी maturity थी. पर जो मेरे छोटा वाला है वो थोड़ा alpha male child है. मैं उसको बदलने की कोशिश करूं या मैं उसको इस तरह से, क्योंकि उसकी कई सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे जीनियस भी लगता है, लेकिन बट वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड हिम सो इजीली बिकॉज ही इज ऑल हाइपर एंड एकदम बहुत तेजी से उसका दिमाग चलता है. हाउ डू आई हैंडल दैट गुरुजी? How old is he? He is 12 years old. A teenage is a very tough age for kids because they are undergoing a lot of hormonal changes. तो उन बच्चों को उस वक्त खूब उनको टैलेंट्स में लगा देना चाहिए. म्यूज़िक लेसन्स लो, यू नो गो एंड डू स्विमिंग. अभी तो लॉकआउट में स्विमिंग वगैरह नहीं जा सकते, जिम में लगाए, स्पोर्ट्स में लगाए. encourage them to learn as much as possible, whether languages or instruments, music. Because this age, the restlessness will be more, and that too when they are to sit and just watch television long periods, ये बढ़ जाता है उनमें. इनको ये वीडियो गेम से बचाना चाहिए बच्चों को. Don't make. वो दिन भर खेलता रहता है and दिन भर he is on video game. Lolly guru. Yeah, we have to divert their attention from video games because it is causing a lot of cause a lot of radiation and load on our central nervous system. So we must make sure that children have limited time in video games, not too much. You cannot take them out of gadgets, but थोड़ी देर खेले, मगर बाकी टाइम वो लोग जो है ना फिजिकली कुछ करें. That would really put them on guitar lesson, tabla lesson. इस तरह का कुछ पियानो सीखें, हारमोनियम सीखें. When they engage themselves in
some sort of activity, physical activity. योगा करें, जिम्नास्टिक में जाएं या जिम्नास्टिक्स करें, इस तरह से कई चीज़ें बच्चों को लगा सकते हैं। ये मेरा बड़ा वाला करता है गुरुजी, वो गिटार बजाता है, पियानो बजाता है। इनफैक्ट वो मुझे मेडिटेशन, मुझसे पहले मेरे बड़े बेटे सुभान आपको पहचानते थे, एंड वो आपके काफी चीजें देख के वो मुझे आजकल मेडिटेट भी करा रहे हैं कि मम्मा ये मैं आपको बैठता हूँ, मम्मा यू नीड टू काम योर नर्व्स। तो वो सबसे ज्यादा खुश थे कि मम्मा आप श्री श्री जी से मिलने वाले हो, प्लीज टेल हिम दैट आई लव हिम अ लॉट एंड आई ब्लेस हिम फॉर बीइंग द प्योर सोल दैट ही इज। गुरुजी एक और एक चीज ना लॉकडाउन में आजकल ये हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ की मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे, बहुत झगड़े हो रहे हैं एंड पीपल आर ब्रेकिंग अप। गुरुजी मतलब क्या 1-2 घंटे जब मिलते थे तब प्यार बहुत था, और जब 24 घंटे साथ में हैं तो इतने लफड़े हो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गुरुजी, साथ में रहेंगे तो प्यार तो बढ़ता है ना गुरुजी? इसमें तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन, बट ज़रूर ये है कि तनाव बढ़ जाता है घर में, फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टनिटी सब होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंड इट ऑलवेज गोज टू द क्लोजेस्ट वन, द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन के ऊपर ही बरस पड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये सब हो रहा है। मगर मैं अभी इनको कहूँगा कि मेडिटेशन करिए, इसीलिए हमने ऑनलाइन हैप्पीनेस वर्कशॉप कराया, ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। लैक्स ऑफ पीपल आर फीलिंग बिग रिलीफ बिकॉज ऑफ दिस। देखो, लोगों में तरह तरह की प्रिजुडिस है। जब हम छोटे थे तब भी हमको ये प्रिजुडिस सामना करना पड़ता था। हाँ, ये प्रिजुडिस दिमाग से निकल जाए व्यक्ति और खिल जाएगा, खुल जाएगा, फिर एकदम लाइफ में एक मस्ती छा जाती है, प्यार होता है सबके प्रति, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनती है। नहीं तो मन में मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये एक तरह की प्रिजुडिस है। जेंडर प्रिजुडिस है दुनिया में, रिलीजियस प्रिजुडिस है, रेशियल प्रिजुडिस है, एज का भी प्रिजुडिस है। छोटे बच्चे को बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठने में तिलमुला जाते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल, दे वांट टू गो इन देयर ओन ग्रुप। इस तरह से कई तरह की प्रिजुडिस हो जाता है, क्लास का, कास्ट का। और ये मेडिटेशन क्या करता है, हमें ये सारे प्रिजुडिस से बाहर निकाल देता है। तब we relate to everybody right from the pureness, from your heart. You accept everybody, everyone is part of you then. So we need to look at this in the world, how we can create a prejudice free atmosphere. हम यही कर रहे हैं। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए गुरुजी कि आप बहुत हमेशा हेल्थी रहे, हैप्पी रहे, और आप अपने मिशन में हमेशा सक्सेसफुल टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी टू द वर्ल्ड। रियली बहुत अच्छा वारदा, वंडरफुल। You also keep well and continue doing your wonderful work. थैंक यू Produce गुरुजी, करते रहो। नमस्कार। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद मी।